listeners, I am Dr. Anuj Kumar Sharma, working in Center for Advanced Studies, which is in campus research driven institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University located in Lucknow. So, we are discussing the strength of material, and today's topic of the discussion is thin spherical shell. So, we have already come to that particular point where we can now apply the basics of the thin shells to the problems, and today's topic of discussion is we have to have discussion on the thin spherical shell. Then we will derive some formula for the stresses in thin spherical shell, और उसके बाद we will take volumetric strain in spherical shell, and wire bound thin cylinders we will also discuss in today's lecture, and then we will take numerical problem to understand the fundamentals. So, this was all about the topics which we are going to cover in this particular lecture. So, as you should be aware that the spherical cells, क्योंकि cells क्या है कि दो तरह की होती हैं, एक cylindrical cell जनरली यूज़ करते हैं हम लोग या spherical cell यूज़ करते हैं, लेकिन maximum time we generally use the cylindrical cells, but in some situations we also use the spherical cells. तो जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, so these kind of storage tanks are the spherical cells. So they may be thin or thick. तो today's topic of discussion is thin spherical cell. तो thin और thick में जो criteria है कि how we differentiate the thin spherical cell with thick spherical cell. So उसके लिए we have a very simple criteria, that is the wall thickness is equal to or less than 1/20th of the internal diameter. तो कोई भी अगर सेल है, तो अगर यहाँ पे अगर हम सेल देखें और ये अगर हमारी एक स्फेरिकल सेल है, तो ये जो थिकनेस है, लेट दिस इज़ द वॉल थिकनेस. सो इफ़ दिस थिकनेस की अगर हम बात करें, तो दिस थिकनेस and this is the internal diameter, let us say this diameter is d. So if thickness is less than or equal to 1/20th of the d, तो अगर ये situation आती है, then this cell will be known as the thin spherical cell, else it would be thick. तो thick की बात जो है वो हम लोग subsequent lectures में करेंगे, but today we are taking the thin spherical cell. और generally जो pressure ये bear करता है वो 300 बार और उससे ज़्यादा bear कर लेता है. तो इसमें क्या है कि अब सिलेंड्रिकल सेल्स में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये स्फेरिकल सेल है. तो स्फेरिकल सेल के लिए लेट अस कंसीडर ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ इंटरनल रेडियस r एंड वॉल थिकनेस स्मॉल t सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर p. तो क्योंकि अगर हम कोई उसके अंदर फ्लूइड या गैस जो भी अगर हम उसके अंदर स्टोर करेंगे, सो दैट वुड बी स्टोर्ड एट सम प्रेशर. जैसे कि हम लोग LPG सिलेंडर की बात करते हैं, तो उसमें जो भी गैस होती है अंदर, दैट विल हैव ए प्रेशर मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो उसके अंदर हम बाई प्रेशर उसको सप्लाई करते हैं. तो जैसे हम यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, तो ये एक स्फेरिकल सेल है जिसकी ये थिकनेस है, दिस इज़ द थिकनेस, और ये जो प्रेशर है इसके अंदर जो लिक्विड या जो फ्लूइड जो फिल्ड है आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड or in the form of gas. So it is exerting a pressure intensity on the internal walls of the cylinder. इस पे या जो स्फेयर है उस पे ये अप्लाई कर रहा है. तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि कितने तरह के फेलियर हो सकते हैं. तो एक तो फेलियर यहाँ से हो सकता है कि ये यहाँ से बस्ट कर सकता है. अब क्योंकि ये स्फेरिकल सिलेंडर है तो इसमें सभी तरफ यूनिफॉर्म होगा. सिलेंडर में तो दो एक्सिस हो जाती हैं, बट यहाँ पे क्या है कि रेडियली चीज़ें होती हैं, रेडियल डायरेक्शंस में वी कैन ट्रेवल. एंड यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिक की वजह से सारे के सारे डायरेक्शंस में सेम प्रेशर इंटेंसिटी होगी. So due to the symmetrical shape of the vessel, the stresses at every point in the cell would be same. क्योंकि symmetric है, 3 dimensional अगर इसको देखें तो जो pressure है जो अंदर fluid है, it would be exerting the same kind of pressure on the internal walls of the sphere. तो the total force normal to the diametral plane, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एक लें, सो क्रॉस सेक्शनल मीन्स अगर हम इस तरीके से इसको देखें कि अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शनल पे देखें, तो इट वुड बी लिटिल बिट, इट विल लुक लाइक दिस. सो लेट्स से दिस इज द हेमिस्फेरिकल एंड लेट्स से दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस. तो जो इसकी
जो इसके अंदर जो गैसेस फिल्ड हैं वो यहाँ पे है, जो भी लिक्विड या गैस जो भी फिल्ड है, सो उसका जो डायमीटर है, सो दिस डायमीटर इज कैपिटल डी, सो ये डायमीटर कैपिटल डी है। सो द फोर्स नॉर्मल टू द डायमीटरल प्लेन कितना हो जाएगा, दैट वुड बी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। सो ये जो, और वी कैन से जो इसकी रेडियस है वो r है तो 2r हो जाएगा। तो ये जो लोड है, सो दैट इज़ द कैपिटल P, सो दिस इज़ द फोर्स नॉर्मल टू दिस। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ये वाला, दैट वुड बी लेट्स से इट इज़ P एक्टिंग ऑन दिस एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया इसका कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो दैट्स वाई इट इज़ कमिंग इन P इंटू स्मॉल p इंटू पाई आर स्क्वायर। सो इट इज़ द टोटल फोर्स नॉर्मल टू द डायमीट्रल प्लेन। अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम के लिए मीन्स कि जो गैस या जो लिक्विड इसके अंदर फिल्ड है, इट विल ट्राई टू बर्स्ट द स्फेयर, क्योंकि प्रेशर अंदर ज़्यादा है। और रुका हुआ किस वजह से है वो, क्योंकि रेजिस्टिंग फोर्स जो उस मटेरियल का है, जो स्फेयर का है, दैट विल ट्राई टू होल्ड द स्फेयर इन इट्स ओरिजिनल शेप। तो जो बस्टिंग फोर्स है, जो गैस या लिक्विड की वजह से आ रहा है, इंटरनल प्रेशर की वजह से आ रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू द रेजिस्टिंग फोर्स। सो here we can see let sigma 1 is the tensile force induced as the section xx। तो ये हमारी जो यहाँ पे जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है, लेट से दिस इज सिग्मा 1। सो रेजिस्टिंग फोर्स कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस एरिया, ये वाला जो एरिया है, क्योंकि सिग्मा 1 तो इस तरीके से जा रहा है, ये रेजिस्टिंग फोर्स है। तो सिग्मा 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस एरिया, ये एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई ये थिकनेस, सो दैट इज द टी। सो इट मीन्स 2 पाई आर इंटू टी। तो ये रेजिस्टिंग फोर्स हो गया। अगर हम बस्टिंग फोर्स की बात करें तो बस्टिंग फोर्स वाज हाउ मच, दैट वाज द बस्टिंग फोर्स P इंटू पाई आर स्क्वायर। सो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशंस व्हाट वी डिड, वी पुट P इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू 2 पाई आर टी। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो यहाँ से ये r गया, राइट, पाई से पाई गया। सो व्हाट वी गॉट, सिग्मा 1 जो स्ट्रेस है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, पी आर अपॉन 2t। और अगर हम इसको डायमीटर में चेंज करें तो हाउ मच इट वुड बी, r इज इक्वल टू डी बाई 2, तो इट वुड बी पी डी डिवाइडेड बाई 4t, तो डायमीटर के फॉर्म में। सो दिस इज द स्मॉल p, सो p इंटू डायमीटर, प्रेशर इंटेंसिटी। सो द स्ट्रेन इन एनी सेक्शन अगर हम बात करें, सो दिस इज द स्ट्रेन किसी भी सेक्शन की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी हाउ मच। सो हेयर वी आर हैविंग टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, वन इज सिग्मा 1 अनदर इज सिग्मा 2। तो ये सिंपल फार्मूला है, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस सिग्मा 2 अपॉन एम ई, वेयर 1 बाई एम इज व्हाट, इट इज द पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। सो सिंप्लीफाई किया इसको हमने सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हर डायरेक्शन में स्ट्रेसेस बराबर हैं ड्यू टू द सिमेट्री। तो फॉर स्फेरिकल शेप सिग्मा 1 शुड बी इक्वल टू सिग्मा 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन ले लीजिए सिग्मा 1 अपॉन ई, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाई एम, एंड दैट वुड बी इक्वल टू सिग्मा 1 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं वट एवर वी हैव डिराइव्ड हेयर। सो यू कैन पुट पी आर अपॉन 2 टी ई इंटू 1 माइनस 1 बाई एम। So likewise we can calculate the increase in the diameter। तो जब हम लोगों के पास ये फार्मूला आया तो नाउ इंक्रीज इन द डायमीटर वुड बी हाउ मच, स्ट्रेन से हम फार्मूले से निकाल सकते हैं। सो दिस इज द डायमीट्रल स्ट्रेन, और स्ट्रेन तो अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू ई, एंड दैट इज इक्वल टू पी डी अपॉन 4t इंटू 1 माइनस 1 बाई एम। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा डी। इफ वी नो द डायमीटर देन वी कैन डेफिनेटली कैलकुलेट द डेल्टा डी। सो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है इसका, जो अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या स्ट्रेन निकालना चाहें तो ओरिजिनल वॉल्यूम इज़ हाउ मच, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, एंड डायमीटर की टर्म में 4/3 पाई डी बाई 2 रेज़ टू द पावर 3, सो पाई डी क्यूब बाई 6। डेल्टा वी अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं उस इक्वेशन को, देन व्हाट विल गेट 3 पाई डी स्क्वायर बाई 6 इंटू डेल्टा डी। हम लोगों ने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन है
इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर. सो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग यू गॉट डेल्टा वी, देन डेल्टा वी अपॉन वी अगर हम देखते हैं तो इट कम्स 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी. और इसको अगर हम यहाँ पे डेल्टा डी बाई डी की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में, सो देन वी गेट डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 पी डी इंटू अपॉन 4 टी ई इंटू 1 माइनस 1 बाई एम. सो इट इज़ नोन एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो और अगर हम शेल रिवेटेड है, जैसे वैसे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पी डी बाई सिग्मा इज हाउ मच, व्हाट वी डिराइव्ड, पी डी बाई 4t. और अगर ये सपोज करिए कि यहाँ पे हमने वेल्ड कर रखा है इस तरीके से, अगर इस पे वेल्ड कर रखा है, दो हेमिस्फेयर्स हमने वेल्ड कर दिए हैं, तो उसकी एफिशिएंसी भी आएगी. सो दिस इज द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द shell if it is riveted or welded. So then eta means efficiency would be the efficiency of the joints. Now we will take the another case where we will discuss the wire wound thin cylinders. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि let us consider a cylinder. अब हम cylinder की बात कर रहे हैं. In previous slide we discussed about the sphere. So sometimes sphere cases also come as a numerical or to derive the stresses induced in the thin spheres. So now we are taking if we want to the store the liquid or gas or the fluid at very high pressure. So then what we have to do, sometimes what we do, we wound the wire over the pipe or cylinder just to sustain the high pressure inside the pipe. तो हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, असिस्टेंस दे देते हैं कि हम अगर उसमें वायर लगा दें तो उससे बांध देते हैं, तो होता क्या है कि कुछ इनिशियल स्ट्रेस उसके ऊपर रहती है. सो इट कैन सस्टेन मोर प्रेशर इनसाइड द पाइप और सिलेंडर. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आधा सेक्शन है और इसके ऊपर वायर इसके ऊपर बंधे हुए हैं. तो वी हैव टेकन द क्रॉस सेक्शन. नाउ let us consider a cylinder of diameter d and wall thickness t around which a wire of, ये जो वायर है इसका डायमीटर है d, ये जो वायर है इसका वायर का डायमीटर है d. इट इज़ wound closely under a tensile stress of, जो भी स्ट्रेस लगी है इस पर वो स्ट्रेस इंड्यूस हुई है जो हमारी सिग्मा डब्लू है जो वायर का है. सो दिस इज़ द सिग्मा डब्लू स्ट्रेस. नाउ लेट स्मॉल p इज़ द इंटरनल फ्लूइड प्रेशर. EW is the modulus of elasticity for material of wire, it is constant definitely. Then we will say the EV is the modulus of elasticity for the material of pipe. So, it is the EP. So, this is for the pipe material. Now, consider unit length of the cylinder. So, for simplicity we have assumed that we are considering only unit meter, मतलब 1 मीटर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. If we can calculate for 1 meter then just we can multiply for the length to get the effect on the desired length. So, here if you see number of turns of the wire per unit length of the cylinder would be how much, 1 by d. So, ये कहाँ से आया, तो इसका जो डायमीटर है वो d है और ये कितने आएंगे, लेट से कि we have n number of wire wounds in unit meter. So, length, let us say length is equal to how much, n multiplied by d. So, if we put L is equal to 1, so n would be how much, that would be equal to 1 by d. So, that is why the number of turns of the wire per unit length is how much, 1 by d. So, if we see cross sectional area of winding wire both sides per unit of cylinder, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा टोटल, क्योंकि हमें सिग्मा डब्ल्यू, हमें ये फोर्स कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स एक्चुअली ये बांधे हुए है इस पूरे पाइप को. तो जो यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू है, लेट्स से कि यहाँ पे देखिए आप कि सिग्मा डब्ल्यू जो है ये रोके हुए है और ये इसकी वजह से बस्टिंग हो रही है, जो प्रेशर जो फ्लूइड लग रहा है यहाँ पे वो इसको हटाने के लिए कोशिश कर रहा है. तो सिग्मा डब्ल्यू जो है वो अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वायर, जो इफेक्टिव एरिया है दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए क्या होगा, एक जो टर्न है इसका हाउ मच एरिया वुड बी ऑफ दिस, सो इट वुड बी पाई बाई 4 d स्क्वायर. लेट से वी हैव n नंबर, सो मल्टीप्लाइड बाई n.
but this is for the single side. Now if we cut or slice off the cross section, so we are getting the area, same area on the other side also. So it means we have to multiply it by 2. So that is why it is we are getting 2n, and n is how much? N is equal to 1 by d. So from there this equation has come, this one. So now if you will see, it become upon the simplification pi d by 2. So you can cut this, you can cut this. So pi d by 2. So likewise we can got this expression. So अगर हम आगे चलते हैं, अब लेट्स से कि W सिग्मा W इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन द वाइंडिंग वायर, जो आप यहाँ से देख सकते हैं ना, ये वाली, लेट्स से इट इज द टेंसाइल स्ट्रेस without fluid pressure inside the cylinder, then total tensile force in the wire would be how much? So you can calculate this by using this expression. So total area is how much? Pi d by 2, that we have already calculated. This is the total area and this is the stress. So if we multiply the stress into the area, then what we are getting? We will get the total tensile force in the wire. So this would be the total tensile force. So here you can say it includes the compressive stress sigma p in the cylinder. तो ये एक कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो इंड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये दबा रहा है उस पाइप को, तो इट इज़ क्रिएटिंग दिस सिग्मा पी. तो एक रेजिडुअल नहीं कहेंगे, मतलब एक ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट एक कंप्रेसिव स्ट्रेस एक आ जाती है, इसकी वजह से जो हम यहाँ पे वायर बाइंडिंग कर रहे हैं पाइप के ऊपर, उसकी वजह से बिना फ्लूइड भरे ही उसके अंदर एक कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाती है. इट मीन्स अगर हम इसके अंदर एक फ्लूइड भरें पाइप के अंदर कुछ हाई प्रेशर पे, तो सबसे पहले तो वो इसको कंपेंसेट करेगा जो हमारा सिग्मा सी है, देन सिग्मा पी है, देन उसके बाद फिर वो अलग से कुछ स्ट्रेसेस इंड्यूस करेगा, जो स्ट्रेसेस हमारा जो पाइप की स्ट्रेसेस हैं, जो पाइप की जो स्ट्रेंथ है वो उसको कंपेंसेट करेगी. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन. अब कंप्रेशन में कितना एरिया आ जाएगा? दैट वुड बी इक्वल टू 2t इंटू 1. लेट्स से फ्रॉम वेयर दिस एक्सप्रेशन हैज़ कम, लेट्स से दिस इज 1 मीटर. वी हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड दैट L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड दिस थिकनेस इज t मीटर or t centimeter, whatever it is. If it is meter, it would be meter. So the total area would be how much? The total area would be this much. दिस इज द टोटल एरिया एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ का भी एरिया हमको देखना है. सो इस पे वो काम कर रहा है. सो इट मीन्स द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन कितना हो जाएगा? 2t इंटू 1, 1 इज द मीटर. सो 2t ये हमको यहाँ से आ गया. टोटल कंप्रेसिव फोर्स इन द सिलेंडर रजिस्टरिंग द टोटल टेंशन ऑफ द वायर, सो दैट वुड बी हाउ मच? 2t इंटू सिग्मा पी. अब ये वाला जो है सिग्मा पी लग रहा है, एरिया वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, सो दिस इज द एरिया. सो एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस. तो यहाँ से हमको टोटल फोर्स मिल गया जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है. अब ये जो कंप्रेसिव फोर्स है ये किसके बराबर होना चाहिए? जो हमारा वायर जो फोर्स, वायर की वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है वो दोनों बराबर होनी चाहिए. सो 2t इंटू सिग्मा पी दैट शुड बी इक्वल टू पाई डी बाई 2 इंटू सिग्मा डब्लू. तो यहाँ से अगर हम देखें तो व्हाट वी विल गेट? सिग्मा पी. सो सिग्मा पी इज हाउ मच? पाई डी बाई 4t इंटू सिग्मा डब्लू. तो इन दोनों स्ट्रेसेस में एक रिलेशन आ गया. इस रिलेशन को अगर हम देखें तो बस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ द पाइप ड्यू टू सिग्मा पी 1. सो इट इज ड्यू टू दिस एंड रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ द वायर रिंग्स ड्यू टू सिग्मा डब्लू 1. तो ये जो हमारी स्ट्रेसेस हैं उनकी वजह से जो रेजिस्टिंग फोर्स आ रहा है पाइप का और जो रेजिस्टिंग फोर्स है वायर रिंग का, दोनों मिला के किसके बराबर होने चाहिए? बस्टिंग के. तभी तो इक्विलिब्रियम होगा. अदरवाइज अगर बस्टिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो बस्ट हो जाएगा, और अगर बस्टिंग फोर्स कम रहेगा तो हमारा जो पाइप है या जो सिलेंड्रिकल शेल है दैट वुड बी सेफ. तो ये दोनों हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. नाउ बस्टिंग फोर्स वुड बी हाउ मच? बस्टिंग फोर्स यहाँ से निकलेगा, दैट बस्टिंग फोर्स इज P इंटू डी इंटू 1. तो वो कौन सा होगा? अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया. ये जो एरिया है विच इज़ परपेंडिकुलर टू दी
फ्लूइड। तो यहाँ पे ये जो डायमेंशन है द डायमेंशन वुड बी इक्वल टू d, और ये जो डायमेंशन है दिस डायमेंशन इज इक्वल टू 1, मीन्स L इज इक्वल टू 1. So d into 1 would be the area multiplied by pressure intensity, which is due to fluid which is flowing inside the or stored inside the pipe. So यहाँ पे जो है ये जो इक्वेशन आई, और जो सिग्मा P1 है वो कहाँ पे काम कर रहा है 2t इंटू 1 एरिया पे, और सिग्मा W1 कहाँ पे काम कर रहा है पाई डी बाई 2 पे. तो एक यहाँ पे काम कर रहा है, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से. तो ये जो टोटल कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स को मिला के जो नेट फोर्स आ रहा है दैट वुड बी इक्वल टू द बस्टिंग फोर्स. तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो पी डी इज इक्वल टू सिग्मा P1 इंटू 2t प्लस सिग्मा W1 इंटू पाई डी बाई 2. यहाँ पे इनिशियल स्ट्रेन ऑफ सिलेंडर जो विदाउट इंटरनल प्रेशर जो है ड्यू टू वाइंडिंग ऑफ द वायर दैट वुड बी इक्वल टू हाउ मच स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. हुक्स लॉ का सिंपल फार्मूला है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिग्मा एल इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, देन फाइनल स्ट्रेन इन द सिलेंडर वुड बी हाउ मच सिग्मा P1 अपॉन EP माइनस 1/m इंटू सिग्मा एल अपॉन EP. 2 डायमेंशनल स्ट्रेस का स्ट्रेन्स का जो फॉर्मूला है दैट वी अप्लाइड है. अब अगर हम इसको चेंज इन स्ट्रेन अगर हम निकालें ऑन सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सो दैट वुड बी हाउ मच, सिंपल वी आर जस्ट formulating this sigma P1 upon EP minus 1/m into sigma L upon EP minus sigma P upon EP. So we have 3 stresses, so we have incorporated all the 3 stresses and we have taken EP, this is for the pipe modulus of elasticity, we have taken out as common, then we have simplified it. Now change in the strain of winding of the wire due to internal pressure. अब इंटरनल प्रेशर क्या है उसमें से आपको इसको अगर हम कंसीडर करेंगे सो इट विल बिकम सिग्मा W1 अपॉन EW माइनस सिग्मा वायर अपॉन E वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन EW कॉमन ले लिया आपने, और सिग्मा वायर 1 माइनस सिग्मा वायर. इसको अगर हम एनालाइज करेंगे तो सिंस द चेंजेस इन द स्ट्रेन्स इन द सिलेंडर एंड इन द वाइंडिंग वायर आर इक्वल, देन वी कैन पुट this equal to this and we can get this expression. तो यहाँ से अगर हम सिग्मा W2 एंड सिग्मा P2 अगर हम फाइनल स्ट्रेस माने इन द वायर एंड इन द सिलेंडर, देन सिग्मा W2 इज इक्वल टू सिग्मा वायर प्लस सिग्मा W1 एंड बोथ द स्ट्रेसेस शुड बी टेंसाइल. सो सिग्मा P2 अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें दैट वुड बी हाउ मच, दैट वुड बी सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P, इट शुड बी टेंसाइल, और सिग्मा P जो है दैट शुड बी कॉम्प्रेसिव. तो अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि जो हमने ये अंडरस्टैंडिंग अभी हम लोगों ने जो ड्राइव किया है फार्मूला की स्ट्रेसेस हमने डिफरेंट एनवायरनमेंट में हम लोगों ने कैलकुलेट की, वी ट्राई टू कैलकुलेट इट व्हेन द फ्लूइड प्रेशर वाज नॉट देयर, सो देन P वाज इक्वल टू 0. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा जो सिलेंडर है दैट मस्ट हैव सम इनिशियल कंप्रेसिव फोर्स जस्ट टू मेक दी सिलेंडर सेफ़र. और अगर हम बात करते हैं कि हम उसके अंदर फ्लूइड प्रेशर फ्लो कराते हैं तो इन दैट कंडीशन उसका जो बस्टिंग इफेक्ट है दैट कम्स इनटू द पिक्चर, और फिर वो उसको कंपनसेट करता है. और अगर दोनों बराबर हैं बस्टिंग फोर्स और जो इनिशियल कंप्रेसिव फोर्स और जो हमारा मटेरियल का जो पाइप मटेरियल की जो स्ट्रेस है वो अगर इन दोनों के बराबर हो जाती है बस्टिंग फोर्स के, देन आवर पाइप इज सेफर. इफ बस्टिंग फोर्स बिकम्स मोर देन द सम ऑफ दीज 2 स्ट्रेसेस देन द पाइप और सिलेंडर इज अंडर ट्रबल, इट कैन बस्ट. तो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं. स्फेरिकल वेसल है, स्फेरिकल वेसल पे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, तो 80 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, सो इट मीन्स D इज गिवन एंड 1 सेंटीमीटर सेल थिकनेस है, सो T इज गिवन, इट इज़ फिल्ड विद ए फ्लूइड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, एडिशनल फ्लूइड इज देन पम्प्ड इंक्रीजेज बाय 5 मेगापास्कल. तो ये हम लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिया है अंदर का जो स्मॉल p है, सो इट मीन्स स्मॉल p में चेंज बढ़ा दिया है. सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस एडिशनल फ्लूइड. इस जो एडिशनल वॉल्यूम जो हम लोगों ने फ्लूइड डाला है इसके अंदर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करा रहा है, एंड वी हैव टू टेक द जो 0.25 जो पॉइजन्स रेशियो है ये 0.25 है, एंड
E is the 200 gigapascal for the shell material. So, this simple data has been given to us. Now, it is very simple numerical, we will take the data. So, sigma, we know for sphere sigma 1 is equal to sigma 2, that would be equal to P d by 4T, because he is silent about the joint. So, we are not considering the joint efficiency. Now, we put this and we can get the value of sigma 1 equal to sigma 2 is 10 raised to the power 8 Newton per meter square. Then strain is equal to sigma 1 upon E minus sigma 2 upon m by m into E. तो sigma 1 is equal to sigma 2 है यहाँ पे, तो हम लोगों ने ये जो वैल्यू रखी है 10 raised to the power 8 upon 200 minus 1 by m means Poisson's ratio is given, sigma 2 is again 10 raised to the power 8 and E is given to us, that is 200 into 10 raised to the power 9. When we simplify it, we get strain is this much. Now, volumetric strain is how much, because we need to calculate the delta V. So, 3E1 is equal to 0.00125. So, we can calculate the, because epsilon V we have derived. So, epsilon V is equal to 3 delta D upon D. तो यहाँ से जो रिलेशन आता है वो 3 epsilon 1. So, this is the first stress में. So, like this we have calculated this. If we see increase in volume is how much, that would be delta V upon V is equal to epsilon V. So, epsilon V multiplied by V is the change in volume. So, that we have calculated here and we got the delta V is equal to 301.592 centimeter cube. So, volume of the additional fluid is 301.592. So, this was the delta V. तो इसी की वजह से जो है उसमें एडिशनल जो चेंज हुआ है वॉल्यूम में. सो लाइकवाइज इट वाज द सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल. सो लाइकवाइज वी हैड कैलकुलेटेड दैट volume of the additional fluid is this much. So, this was all about the thin spherical cell. We have taken this numerical also. और thin cylindrical cells के बारे में हम लोगों ने देखा किस तरीके से stresses और सारी induce होती हैं wire bound के केस में. So, now we are comfortable to solve the numerical problems. So, and I hope you have enjoyed this lecture. So, do the numerical problems at your home. So, thank you for listening the lecture. Thank you so much.